In the last class, we did convex mirror, concave mirror. वो सेम वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं. It's a concave mirror, and this is a convex mirror. P is the pole of the mirror. डायग्राम बनाओ. क्या बात है आज टाइम पे. So a line passing through center curvature. Center curvature for a concave mirror is on the real side. ये real side of the mirror है. जहाँ पे रेड रेज एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं रियल साइड. दिस इज द वर्चुअल साइड बिकॉज रेज डू नॉट एग्जिस्ट दिस साइड. जिस साइड पे रेज एग्जिस्ट नहीं करती उसको बोलते हैं वर्चुअल साइड. रेज डू नॉट एग्जिस्ट हियर. So one side is, and August today was the test date for you guys. Chapter 4, 5, 6, 7. August and Shanaya. हाँ जी. When you will write the test? So can I do it on 23rd? आज टेस्ट था ना, कल 21st ही तो है. नहीं, so कल परसों हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं. सर आपको बोला था कल कल परसों प्रैक्टिकल है तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे. कल प्रैक्टिकल है, फिर परसों. परसों भी है परसों सर. 23rd is Saturday सर. ठीक है, सैटरडे को दो. सो द साइड जहाँ पे रेज एग्जिस्ट नहीं करती है वो वर्चुअल साइड है. जहाँ रेज एग्जिस्ट करती है वो रियल साइड है. कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर कर्वेचर इज ऑन द, ये सारे कंसेप्ट आ सकते हैं. In the case of convex mirror, center curvature is on virtual side, and in the case of concave mirror is on real side. C is center of curvature. An imaginary line passing through center of curvature, and the pole is called principal axis. Imaginary line passing through center of curvature and pole is called principal axis. End to end thing is called aperture of the mirror. ये aperture है. End से end तक का distance is diameter और aperture. Diameter or aperture. End to end is called diameter or the aperture of the mirror. If a ray is parallel to principal axis and it's not very far away from the principal axis, it always passes through a fixed point, and that fixed point is called focus. In the case of a convex mirror, a ray parallel to principal axis will be reflected back as if it's coming from a fixed point called focus. So in case of a concave mirror, if a ray of light is parallel to principal axis, it will pass through a fixed point called focus. In the case of a convex mirror, a ray parallel to principal axis would be reflected as if to come from a fixed point called focus. Appear to come from a fixed point called focus. ये होता है. तो in case of
convex mirror focuses on virtual side. Now, मिरर में एक डिफेक्ट भी होता है इफ यू यूज अ वेरी लार्ज मिरर जिसका डायमीटर अपर्चर बहुत ज्यादा है, फिर क्या प्रॉब्लम आती है? इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी लार्ज, जो कि टेलीस्कोप में यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में लार्ज अपर्चर लार्ज डायमीटर के मिरर यूज होते हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी? वहां ये प्रॉब्लम होती है रेज विच आर मार्जिनल, मतलब rays which are away from principal axis, they undergo multiple reflection and they do not pass through focus. Rays which are marginal rays, they do not pass through focus, they undergo multiple reflections. तो इसको बोला जाता है, this defect is called spherical aberration. So what is spherical aberration? In case of mirror of large diameter or large aperture, rays, हाँ लिख लो ये सारा काम का चीजें, spherical aberration. If aperture of a mirror, if aperture of a mirror, ये practical में पूछ सकते हैं वाइवा में. If aperture of a mirror is large, marginal rays, bracket में, rays away from the principal axis, rays away from principal axis undergo multiple reflections, undergo multiple reflections, and they do not focus at the focus. They do not converge at the correct focus. Undergo multiple Reflections, undergo multiple reflections, and do not converge at the correct focus. But they converge before the focus. But they converge before the actual focus. This defect is called spherical aberration. This defect is called spherical aberration. As a result, image is not distinct but blurred. As a result, image is not distinct but blurred. आगे लिखो, to rectify this defect, parabolic mirrors are used. To rectify this defect, parabolic mirrors are used. देखो, this is a parabolic mirror. So parabolic mirror would be in the form of a parabola. So this is parabolic mirror. तो पैराबोलिक मिरर को यूज करके हम इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं. So how to rectify? We rectify this defect using spherical mirror की जगह parabolic mirror. तो parabolic mirror में even the rays which are away from principal axis, they will converge at the correct focus. ऐसा होता है. दूसरी बात, in both the mirrors, distance will be measured from the pole, and distance of the focus from the pole is f, and distance of the pole from the center of curvature is r, and r is always 2f. In both the mirrors, radius curvature would be 2 times the focal length. Radius of curvature is 2 times the focal length.
Yes, Sagat. Sir, apparently like my friend like to put on the group chat कि हमारे उसमें से EMI काट रहे हैं वो सिलेबस में से। ISC में? हाँ, like from the midterm midterm. syllabus अच्छा, because बात नहीं, जो मैंने बच्चे टेस्ट में तो दिया है, तुम देख कर लेना उसको, है ना? ठीक है सर, बट लाइक वो कह रहे हैं बट midterm में नहीं हाँ, आएगा। midterm में नहीं आएगा, ये- कंफर्म नहीं है, बट अच्छा, बोल रहा है कि ऐसा हो मेरे सकता ख्याल से आना तो चाहिए, बिकॉज फिर मिड टर्म में तो फर्स्ट बुक तो पूरी आती है ना, है। और तुम्हारा एग्जैक्ट। रे एंड वे भी तो आ रहा है, हाँ, हाँ, दैट इज बट द थिंग ऑल्सो। इज जो बच्चे बाहर जा रहे हैं who need predicted and all वो तो मतलब हाँ, रो उनका पड़े हैं स्कोर कि कम हो सिलेबस जाएगा। कम करो। आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, यू गाइज राइट द टेस्ट, बिकॉज हमें तो अल्टीमेटली बोर्ड के लिए करना है ना। हाँ जी, यस। ठीक है सर। तो फिर तो एसी भी नहीं आएगा, नहीं। है ना, EMI एसी के एसी। सिर्फ 4 आर्टिकल आ रहे हैं, वो आई स्क्वायर आर एम अच्छा एस अच्छा वाले। अच्छा, चलो ठीक है। तो R इज ऑलवेज 2F। इसमें एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है जो मैं याद करना है, वो लिख लो, वो 2 मार्क का आ भी सकता है। द सेम कन्वेंशन विल बी होल्ड ट्रू फॉर, क्योंकि एज इट इज यू हैव वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो ना, सो दैट वे योर सिलेबस इज ह्यूज। मतलब अप्रोक्सीमेट हमारा 75% सिलेबस आ रहा था वैसे, अगर EMIC ऐड कर दो तो, क्योंकि इस रे ऑप्टिक्स के बाद हमारा कुछ भी सिलेबस नहीं बचता। सेमीकंडक्टर 3 क्लासेस, न्यूक्लियर वाला चैप्टर 3 क्लासेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 4 क्लासेस, 1 महीने का सिलेबस बचता है मुश्किल से आफ्टर रे ऑप्टिक्स। तो फिर हम टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। तो अब क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल लिखो। फर्स्ट पॉइंट, this will hold true for mirror also, and this will hold true for lenses also. First point is rays always begin from object. Rays always begin from object. तुमने देखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट लाइटेड एरिया में है, तुम डार्क में हो, फिर भी तुम ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डार्क एरिया में, तुम लाइटेड एरिया में, तो यू कांट सी द ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती हैं। रेज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। Rays always begin from object. Point number 2, all the distances will be measured from the pole of the mirror. All the distances will be measured from the pole of the mirror or optical center of the lens. लेंस के सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वी represented by O, जबकि center of a mirror is represented by pole. So all the distances will be measured from the pole of the mirror or optical center of the lens. मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, विल मूव फ्रॉम द पोल, विल गो लाइक दिस। सो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल। अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, विल गो फ्रॉम द पोल, विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल। तो सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगी। सो डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस measured opposite to the direction of incident rays. Distance is measured opposite to the direction of incident rays are negative. Distance is measured opposite to the incident rays are negative. And in the same direction of incident rays are positive. And in the same direction as the incident ray are positive. तो जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो तुम पोल से मेजर करना शुरू करोगे, तो यू आर गोइंग ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 99% क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम -u से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल विल सब्स्टिट्यूट माइनस साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नॉर्मली u से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे को फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर मेजर करना है, तो आई गो दिस वे। सो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
जबकि सॉरी नेगेटिव, जबकि उसका नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो विल बी नेगेटिव। जबकि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। In fact, this will be true for lenses also. Same way. मतलब सेम साइन कन्वेंशन वहां भी एप्लीकेबल होगा. So this is the point number 3. Then distances above principal axis will be measured positive, and distance below the principal axis will be negative. Distances above principal axis positive, and distances below principal axis will be negative. So that is the sign convention. अब कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले अब करते हैं कॉनकेव मिरर. सबसे पहली सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है. इसमें भी दो सिचुएशंस बन सकती हैं. एक सिचुएशन जब रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से अगर तुम सारी डिस्टेंस मेजर करके इक्वल बनाओगे ना, तुम्हारा बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा. ऑलवेज टेक दिस इक्वल टू दिस, एंड मिरर को परफेक्टली स्फेरिकल मत बनाओ, थोड़ा फ्लैट बनाना, ठीक है. डोंट मेक परफेक्टली स्फेरिकल मिरर. मतलब रेडियस का वेटेज ज्यादा रखोगे तो अच्छा डायग्राम बनेगा. तो अगर रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ एट इंफिनिटी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां पे इमेज बनेगी. सो इमेज वुड बी एट फोकस inverted and highly diminished. बहुत छोटी. ये तुमने प्रैक्टिकल में किया हुआ ही होगा अप्रोक्सीमेटली. अगर तुम्हें फोकस निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है कॉनकेव मिरर का, तुम क्या करते हो, मिरर को सन की तरफ रखते हो और उसको फोकस करते हो वॉल पे या पीस ऑफ पेपर पे, तो एक पॉइंटेड इमेज बनती है. और वो अगर तुम उसको बहुत देर तक रहोगे तो पेपर बर्न भी हो जाता है, आग भी लग सकती है. इतनी सारी रेज एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसको इट माइट बर्न द पेपर ऑल्सो. सो एट फोकस इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड. सो नेचर ऑफ इमेज, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल भी होगी. इन्वर्टेड एंड द रियल इमेज का मतलब क्या है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन. तो तुम सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो वो भी रियल इमेज है. बट व्हेन यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, इट इज नॉट अ रियल इमेज, इज अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज को हमेशा मिरर या लेंस के अंदर देखोगे, रियल इमेज को हमेशा स्क्रीन पे देखोगे, वॉल पे देखोगे, ठीक है. क्या हो मनन, तुम भूल गए, सो गए थे मनन, अभी नींद में. अब क्या हो सकता है इसी सिचुएशन में कि भाई ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, बट द रेज आर not parallel to principal axis. This is the pole, focus and center curvature.
Rays are parallel to each other because object at infinity. Sun से जो rays आती हैं, they are parallel to each other because sun is at very large distance, so it's almost rays are parallel. तो image का बनेगा? Image will be formed at the focus. It will be diminished, inverted. So rays after reflection would be meeting at the focus. Focus वाले लाइन पे मीट करेंगे, ये होगा. So this is when image object at infinity, image will be formed at focus, inverted, highly diminished, real and inverted. Inverted image हमेशा real होगी, real हमेशा inverted होगी, vice versa. Next, object beyond C. ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है. अब क्या होगा? पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया. डायग्राम बनाओ इतना. ऑब्जेक्ट, एक रे ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से ले लेंगे. दिस रे विल गो स्ट्रेट एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, रे रिट्रेस इट्स पाथ. तो रे वापस इसका पाथ रिट्रेस कर लेगी. दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस. थर्ड रे को तुम सी से भी ले सकते हो, तो फोकस से भी आ सकता है, ऐसे जाके वापस आ जाएगा, बात वही है. दिस इज द इमेज. ए का इमेज ए डैश, बी का बी डैश. तो रियल तो है बिकॉज इन्वर्टेड है. रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, छोटी होगी मतलब डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है. एंड बिटवीन, पोजीशन क्या है इसका? बिटवीन सी एन एफ. So image is inverted, real, diminished, and between C and F. This is when object is beyond C. Third, object at C. So this is the object. One ray point A से जाएगा straight, will be retraced. Another parallel to principal axis. It will pass through focus.
रे में एरो जरूर लगा देना, ठीक है। अनदर रे यू कैन टेक थ्रू सेंटर कर्वेचर, यहीं पे बन जाएगा, अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम फोकस एज वेल। इमेज वुड बी, ए का इमेज यहीं बन जाएगा, ए डैश, दिस इज बी डैश। ए बी इज ऑब्जेक्ट, A dash B dash is image. And as you can see, image is real, inverted, same size, and at C only. जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, and it's formed at C only. Next, between C and F बनाओ। गरिया बोर्ड पे बना देना CNF वाला। The next is fourth है ना, between C and F। आओ, सी अपने आप बन जाएगी। इधर आओ ना। तुमने डिस्टेंसेस गलत लिए होंगे ना, सी एफ और एफ सी की डिस्टेंस बराबर ले लो। एफ से पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस एफ और सी का होगा, तो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बिल्कुल सीधी खींचना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाओ, ब्लैक कलर ले लो। ऑब्जेक्ट, हाँ, यहाँ बीच में ले लो। स्ट्रेट लाइन लो बिल्कुल, और फोकस से भी स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल टेढ़ा मत करना। हाँ ठीक लग रहा है, आगे प्रोड्यूस करो इसको। रेक, हाँ आगे हाँ, अब ठीक है। टेढ़ी कर दी ना तुमने रेज, ये वाली, नहीं, रे टेढ़ी कर दी ना। इसको तुम सीधा करो। इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बिल्कुल सही बनेगा तुम्हारा डायग्राम ना। इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ, ये आके यहाँ पे कहीं आएगा। इसका दूसरा तरीका है, टिप को ना तुम सी से भी पास करा सकते हो, बिल्कुल सीधी ले जाना रेज। हाँ, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कि पता, अगर तुम सी से ले जाती ना, ये यहाँ बनती इमेज। सी से अगर ले जाते तो यहाँ इमेज बनती। हम्म, नहीं, बियॉन्ड सी बनेगी ना ये डिस्टेंस हमें हमेशा इक्वल रखना होता है। तो इनफैक्ट थोड़ा सा ना ऐसा ले लो। क्या हुआ, जाओ। सिर्फ इसका कर्वेचर थोड़ा बड़ा रखना होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पे वी अज्यूम दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब जितना तुम नजदीक फोकस के रखोगे उतनी बड़ी इमेज बनती है और दूर बनेगी। आई वुड हैव टेकन थ्रू सेंटर कर्वेचर आल्सो। तो दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। इमेज कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड, enlarged,
इमेज का साइज बड़ा होगा, एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड सी। ये बिल्कुल पिछले वाले सी के पहले वाले का उल्टा रिवर्स केस है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था ना हमने, तो इमेज फोकस और सी के बीच में बनी थी। इस बार ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, इमेज बियॉन्ड बनी है। इसी डायग्राम में अगर तुम टिप से सी की तरफ लेते तब भी आंसर आ सकता था। सो आई ड्रॉ अनदर रे डायग्राम जिसमें मैं फोकस से पास नहीं कर रहा उस रे को, आई पास इट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज पी। इसमें तुम नेक्स्ट बनाओगे ना? क्यों? ऐसा क्यों? बोर्ड नहीं दे रही इस बार? इस बार एग्जाम नहीं दोगे क्या? हम्म। इस वाले में क्या कर रहा हूं मैं, आई एम पासिंग दे रहे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी आंसर आ सकता है। रादर टेकिंग नो द रे लाइक दिस एंड दिस, यू कैन टेक थ्रू सी ऑल्सो। सी से भी ले सकते हो। अनन्या, बन गया डायग्राम? रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज बियॉन्ड सी। Yes, sir. नेक्स्ट लो एट फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो क्या होगा? ये डिस्टेंस सेम रखनी है, ठीक है, और रेडियस कर्वेचर कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे जब तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करोगे। तो वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे पास करेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो एंड दीज विल बी पैरेलल, दे विल बीट एट इन्फिनिटी ओनली। ये भी आ सकता है, प्रूव दैट दे आर पैरेलल। प्रूव दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे करोगे प्रूफ? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस एफ है और ये डिस्टेंस भी एफ है ना, ये वाला डिस्टेंस भी एफ है और ये भी एफ है। तो इसको कुछ मार्क, इसको क्यू ले लेते हैं। बी क्यू एफ सी is a parallelogram. That is why these rays would be parallel. So they will never meet. Never meet का मतलब नहीं है कि कहीं इमेज ही नहीं बनेगी, इमेज बनेगी infinity पे। मतलब you can see on the screen, it would be inverted, real, highly enlarged, and at infinity. Next, when object is between P and F. Aradhya, object P and F. Real, inverted, highly enlarged. You can take through C also. Any ray which passes through retraces its path. It they will be produced to meet back at the virtual side. नहीं, dotted बनेगा, image will be dotted. Will be virtual image. Virtual image को dotted बनाओगे हमेशा, because rays वहाँ पे actually meet नहीं कर रही है ना, so the it will be
virtual image. So it will be behind the mirror, virtual, erect. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, अपराइट होती है. वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होगी. एंड लार्ज भी होगी बिकॉज ये रे सारी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. इट विल पास थ्रू फोकस. डाइवर्ज कर रहा है ये. बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो इसको. अनदर थ्रू सेंटर कर्वेचर. सेंटर कर्वेचर वाली रे हमेशा रिट्रेस करती है. These two rays are diverging, they will never meet. So you need to produce them backward. And यहाँ पे highly enlarged virtual image is formed. ये ऐसा डायग्राम बनेगा. Now this is the situation which is, used in cosmetic mirrors, shaving mirror. शेविंग मिरर में तुम्हें अपना फेस बिटवीन पोल एंड फोकस रखना होगा कॉनकेव मिरर के. तो यू कैन सी लार्ज इमेज. तुम्हें होटल्स वगैरह में देखा होगा. लेडीज से जो कॉस्मेटिक मिरर होता है छोटा सा, वो भी यही होता है. कॉस्मेटिक मिरर में फेस को रखना पड़ता है बिटवीन पोल एंड फोकस. तो इमेज एनलार्ज होती है, इरेक्ट होती है. Now we've seen that a concave mirror forms all kind of images, है ना. रियल इमेज भी फॉर्म हुआ, वर्चुअल भी हुआ. लेकिन वर्चुअल एनलार्ज हुआ, जबकि रियल सेम साइज भी था, स्मॉलर भी था, एनलार्ज भी था. वर्चुअल वॉज एनलार्ज्ड. नाउ टेल मी वन थिंग. अगर हम पोल्स फोकस से पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो क्या होगा? इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस टू द पोल, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे मैंने रखा, उसकी जगह यहां रख दें, ठीक है. दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2. तो फिर क्या होगा? ये वाला रे तो सेम रहेगा, है ना. लेकिन ये जो रे है, ये वाला यहां से जो चल रहा था, ये चेंज हो जाएगा. तो साइज ऑफ इमेज बढ़ेगा, छोटा हो जाएगा? नहीं, छोटा होगा. तो इफ यू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस टू द पोल, देखो फोकस पे क्या था, इमेज इन बहुत एनलार्ज थी. तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, साइज ऑफ इमेज वुड डिक्रीज. लिख लेना. ये कंसेप्चुअल में आ सकता है, या वाइवा में दे माइट आस्क यू. इफ यू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस टू द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, size of image would decrease. बिकॉज अब क्या हुआ, ये वाली जो रे थी ना, जो सेंटर कर्वेचर से पास कर रही थी, मैं इसको रेड से बना रहा हूं, ये नीचे आ गई ना अब ये. तो फर्स्ट सिचुएशन में ये इमेज था, सेकंड सिचुएशन में ये इमेज है. सो दिस इज कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. अनन्या डायग्राम बना रही हो ना सारे? शनाया अगर से दोबारा से बना लेना. आई नो यू हैव डन दिस बट स्टिल. यस Yes. सर. Image formation by a convex mirror.
convex mirror, in a convex mirror, pole is this, focus is on virtual side, and radius of curvature is also on virtual side. ऑब्जेक्ट को मैंने सपोज यहाँ रखा पहले, this ray will retrace its path, another ray parallel to principal axis. ऑब्जेक्ट की टिप से हमने रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस किया, इट विल अपीयर टू पास थ्रू, बिकॉज नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा सेंटर कर्वेचर, है ना, नॉर्मल है सेंटर कर्वेचर, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ये, इट विल बी रिफ्लेक्टेड, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है. डाइवर्जिंग मिरर. सो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे, है ना. दूसरा तुम क्या करोगे, सेंटर कर्वेचर से लोगे, अनदर रे थ्रू सेंटर कर्वेचर, ये डॉटेड डॉटेड बनाओगे यहाँ पे. सेंटर कर्वेचर से रे हमेशा रिट्रेस होती है, क्यों होती है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है. तो ये वाली रे डाइवर्ज हो रही है, ये भी डाइवर्ज हो रही है, कभी मीट नहीं करेंगे, बट जब ने इसको प्रोड्यूस किया दे आर मीटिंग समवेयर हियर. तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इसको डॉटेड से शो करना है तुम्हें, ए डैश बी डैश. जब तुम व्हीकल में रियर व्यू मिरर में देखते हो पीछे का ट्रैफिक, वो सारा इस तरह से नजर आता है, छोटे से रियर व्यू में यू कैन सी द एंटायर ट्रैफिक बिहाइंड, सारा इरेक्ट नजर आता है, डिमिनिश नजर आता है, वरना पता लगा पीछे भैंस आ रही है, तुमने देखा और वो एनलार्ज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, तुम्हें लगा डायनासोर आ गया, गाड़ी छोड़ के भाग गए. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है. तो rear view mirrors are always convex mirror. Why? Because you can see a large traffic behind in erect position in a small mirror. ये why में पूछ सकते हैं कि why do we use rear view mirror as a convex mirror? Because you can see large view of the traffic behind in a small mirror. तो यहाँ पे इमेज बनती है. तो इमेज क्या है, वर्चुअल साइड में बनी तो वर्चुअल इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड है, अपराइट है, एंड बिहाइंड द मिरर. बिटवीन पोल एंड फोकस तो बनेगी ही बनेगी. अब ऐसा करते हैं, इसी रे डायग्राम में अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स द पोल, फिर क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन के लिए हम इमेज बनाएंगे. पहली इमेज, पहला ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये है. द कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज. ठीक है, लिख लेना. A convex mirror always forms virtual, diminished, and upright image. बनाओ.
भव्य क्या हो गया, नींद खुल गई तुम्हारी? भव्या, यस सर। मैं तो मैसेज डालने वाला था कि एब्सेंट स्टूडेंट। नहीं सर, वो एकदम से मैंने अभी टाइम देखा, मुझसे पहले मैं मैथ कर रही थी तो मैंने देखा ही नहीं टाइम। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग में देखना बाकी सारा। ठीक है सर। अस्सी में कंप्लीट करो डायग्राम ये वाला। आओ। आ सर जाओ। मेरा फिजिक्स का हाफ ईयरली 15 सितंबर को है। अरे पूरा महीना अभी तो अगस्त से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट बुक। ठीक है, तो चैप्टर 4 5 6 7 का टेस्ट संडे को देना तुम, इस बार संडे या सैटरडे को जब भी टाइम मिले। डोंट डिले ठीक है। दिस टाइम, ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ और फिर उसको जो भी इसमें गलतियां उसको देख लें हम। आओ, असमी आओ। अरे कोशिश तो करो, एक रे तो ऑलरेडी बनी हुई है ये वाली, ये रे सेम रहेगी, सिर्फ सेंटर कर्वेचर वाली चेंज हो जाएगी। सिर्फ सेंटर कर्वेचर ये वाली रे बनानी है, तो मैं इसको डॉटेड बन के यहाँ तक मीट करना है बस। उसमें आज तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना तुम्हारी दोस्त को बनाना पड़ेगा। आ जाओ, तो उसको भेज दो फिर चुपचाप, ये बनाएगी फिर। चलो फिर, इस रे को चेंज करना है, तो मैं सिर्फ ये वाली रे को ना, टिप वाली तो मैंने बनाई थी, सेंटर कर्वेचर वाली बनानी है। जो सी से डॉटेड बन रही है ना, वो चेंज हो जाएगी। तो फिर कैसे करोगे कौन? हाँ, चल इसको पुश करो। क्यों नहीं आया? तो ये तो तुमने 10th क्लास में भी किया हुआ, 10th में 95 थे तुम्हारे, कैसे आ गए 95 मार्क्स? तो ये वाली रे तो सेम रहेगी, है ना? एंड द सेकेंड रे वुड बी, ये वाला चेंज कर लेते हैं बस, सेंटर कर्वेचर वाली ना। तो सेंटर कर्वेचर से ये रे चली, ये रिट्रेस होके ऐसे चली गई, एंड दिस यहाँ पे डॉटेड बनेगी। तो अब क्या होगा, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो दिस इज इमेज नंबर 1 वाली पोजिशन, इमेज नंबर 2 वाली पोजिशन। तो जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स, ये सारे कंसेप्चुअल दे माइट आस्क इन वाइवा, when you push the object towards pole of a convex mirror, size of image would increase। ठीक है, लेकिन कितना ही तुम उसको टुवर्ड्स पोल पुश करोगे, साइज ऑफ इमेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइज ऑफ इमेज के बराबर ही होगा, डिमिनिश्ड ही होगा हमेशा। ठीक है, इट बी ऑलवेज डिमिनिश्ड। जैसे कि चूहा कितना भी खाना खा ले, वो हमेशा कभी भी हाथी नहीं बन सकता, नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी ही बनेगी। So when an object is pushed towards pole of the mirror, size of image would increase। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या हुआ था?
अब लेट्स डिराइव द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन 3 मार्क का आ सकता है. सर हम्म. हमारा इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूट में कब तक खत्म हो जाएगा? इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी क्वेश्चन विद यू गाइस, बट मुझे 1 महीना लगता है इंटीग्रेशन जनरली. क्योंकि मैं इफ आई रश तो वही स्कूल वाली बात हो जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इनफ क्वेश्चन, तब तक वो नहीं हो पाता. तो वो डिपेंड करता है तुम लोग कितना जेन्युइनली घर पे क्वेश्चंस करते हो. लास्ट क्लास में हम्म। जो मैंने करवाया था उसको तुमने कर लिया घर पे हाँ वो रिमेनिंग? तो हो गए सारे। हाँ, तो फिर तो जल्दी जल्दी हो पाएगा. क्योंकि अभी हाँ फेयरली शुरू हो जाएंगे तो उसमें हमारे एक हफ्ते, जैसे मेरा पेपर स्कूल हम्म. वालों ने सैटरडे को ही पेपर डाला है। अच्छा. तो मेरे को तो वो चीज नहीं समझ आ रही। मेरे 2 पेपर सैटरडे को हैं, एक फिजिकल एजुकेशन और एक आईपी का हाफ ईयरली। ठीक है. तो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली उस दिन क्लास मिस करनी पड़ेगी। कोई और वो बात दो नहीं. घंटे की क्लास होगी। हाँ, कोई बात नहीं. तुम वीडियो देख लेना है, वीडियो ले लेना मेरे से, है ना, हम्म। इंटीग्रेशन वाला. बट मेरे इंटीग्रेशन रखने इस समय करने का मकसद ही होता है कि बच्चे क्लासेस मिस ना करें. क्योंकि यहाँ हम्म। इंटीग्रेशन हो ही रहा है, तो इंटीग्रेशन एग्जाम में आ ही रहा है, वैसे डर लगता है इंटीग्रेशन में. तो प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी. क्योंकि इसलिए मैं मैं, मैथ्स में अभी सिर्फ इंटीग्रेशन ही कर रही हूँ। मैं जैसे नॉर्मल भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन तक अपने हिसाब से पहुंच चुकी हूँ। हाँ, जो मैंने असाइनमेंट दिया ना उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. हमने 1-2 क्वेश्चन तो किए हैं अभी बस. वो बात अलग है, एक क्वेश्चन में 50 पार्ट्स हैं. हम्म। हो जाएगा. बट जब हम फिनिश करेंगे ना इंटीग्रेशन, मतलब तुम बिल्कुल बॉन्ड बन जाओगे इंटीग्रेशन के, ये इतनी गारंटी है. बी देयर एनी क्वेश्चन तुम कर पाओगे, एंड क्लास में जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछेगा तुम बोर्ड पे जाके कर लोगे. राइट. मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले लेते हैं. ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाओ, बियॉन्ड सी वाला डायग्राम बना लो. अच्छा से डायग्राम बनाना. मेरे को ऑलमोस्ट फ्लैट बनाना. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज ए. पेंसिल से डायग्राम बनाना वहां तो खैर तुम, एक रे विल पास थ्रू फोकस, अनदर सेंटर कर्वेचर से ले लो, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड हियर. बनाओ डायग्राम. पूरे रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का ही खेल है. बन गया. अब distances will be measured from the pole. This will be minus f. इंसिडेंट रे इधर है, लेफ्ट टू राइट वी हैव टू गो दिस वे. सेंटर का ये इमेज बन रही है यहाँ पे, इमेज का डिस्टेंस हमेशा v से रिप्रेजेंट होगा, माइनस v. दिस सेंटर का वेचर, दिस वुड बी ट्वाइस f, अगेन माइनस.
and this is the object distance, it would be minus u. Look at these two triangles जो मैंने शेड किए हैं. This is 90, this is 90. Triangle BAC and triangle B dash A dash C. They're similar. By double A, है ना? एक दो एंगल 90 डिग्री हैं और दो वर्टिकली ऑपोजिट है ना. 90 डिग्री एंगल हो गया और वर्टिकली ऑपोजिट हो गया. सो सिमिलर ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस बाय बेस. देखो, है ना? परपेंडिकुलर साइड बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस. तो अब बताओ मुझे एसी डिस्टेंस क्या है? ए सी. ए सी इज बेसिकली एपी माइनस सीपी, है ना? AP minus CP. Similarly, what is A dash C? A dash C would be CP minus A dash P. AC ये वाला डिस्टेंस था, which is AP minus CP. A dash C is this CP minus A dash P. What is AP? A से P का डिस्टेंस है माइनस यू. साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. CP डिस्टेंस कितना है? -2f. सेंटर कर्वेचर डिवाइड बाय CP. CP is -2f minus A dash P. A dash P is minus V. So this is minus U plus 2F डिवाइड बाय -2F plus V. इसको याद करते जाओ साथ साथ. अब तो सीधा तुम्हें एग्जाम ही देना है ना. लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रायंगल जो सिमिलर नजर आ रहा है. ये वाला राइट ट्रायंगल और ये वाला. ऑल्सो राइट ट्रायंगल QPF and right triangle B dash A dash F are similar. These are also similar. तो डबल ए सिमिलैरिटी बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, 90-90 हो गया. तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर PQ बाय A डैश B डैश. बेस कितना है इसका? PF और इसका ट्रायंगल का A डैश F. PF तो -F हो गया. A डैश F कैसे निकालोगे? A dash F would be A dash P minus FP. PQ is same as AB. A dash P is minus V. Equation number 2. अब एक बार इसको दोबारा से देख लो.
इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड सेम है ना, राइट साइड इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड वही सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल। पी क्यू इज ए बी, पी क्यू इज ए बी ओनली, पी क्यू इज ए बी ओनली। अब इसको डिवाइड कर दो यू वी एफ से। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। दिस इज अ मिरर फॉर्मूला। So this is the mirror formula. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. So this was for convex, concave mirror. I will do it for convex mirror. Magnification होता है height of image by height of object, which is minus v/u. Magnification is the ratio of height of image to the height of object. लेंस में क्या होता है कि f1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है, वहां प्लस हो जाता है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर लेंस का उल्टा हो जाता है।
ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिकॉज एज इट इज इमेज के साथ बहुत छोटा होता है। बनाओ, लार्ज अपर्चर का कॉन्वेक्स मिरर बना लो एक। One ray parallel to principal axis. It appears to pass through. Focus gets reflected. Another ray retraces. Next ray would be through center curvature, जो कि ऐसे डाइवर्ज हो गई। यहाँ पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। दिस पॉइंट इज क्यू। पोल से फोकस प्लस एफ होगा। पोल टू सेंटर कर्वेचर प्लस 2f होगा। पोल टू ऑब्जेक्ट विल बी माइनस यू। एंड ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, इमेज डिस्टेंस प्लस वी। इमेज डिस्टेंस वुड बी पॉजिटिव बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब सेट ऑफ ट्रायंगल्स वही लेंगे जो हमने पहले लिए थे। एक ट्रायंगल है बी ए सी एंड दूसरा ट्रायंगल है बी डैश ए डैश सी। देखो, इसमें ये एंगल कॉमन हो गया एंड दूसरा एंगल 90 डिग्री हो गए। तो दो राइट एंगल, एक एंगल कॉमन। सो वी बेसिकली यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है अनन्या, देखो एक बार डायग्राम बन गया। पेंसिल से बनाना डायग्राम, यस अच्छा रहेगा। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस कितना हो गया, ए से सी तक बड़ा ट्रायंगल है ना ये, और ए डैश सी। ए सी कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी सी। ए डैश सी कितना होगा, पी सी माइनस पी ए डैश। So what is AP? AP is minus U. What is PC? PC is plus 2F साइन के साथ।
PC is 2F, PA dash is plus V. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. अब देखो कौन से दो ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर नजर आ रहे हैं. QPF and BA dash F. Right triangle QPF and right triangle B dash A dash F. इसमें भी दो 90 और एक एंगल कॉमन. ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये 90 है, भी 90. पता लग रहा है इसमें. तो इसमें वापस वही कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस करो. So PQ by A dash, perpendicular by perpendicular, base इसका है PF और ये है A dash F. PF is plus F, A dash F कैसे आएगा? PF minus PA dash. PF is F. Equation 2. PQ is basically AB. A dash F is F minus V. Now, equation 1 and 2 have the same LHS. So we could equate their RHS. Cross multiply. एक बार शुरू से एक बार गो थ्रू कर लो ताकि याद हो जाएगा ये. कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एफ स्क्वायर कटना चाहिए था. तो नीचे -2F नहीं होगा? अच्छा प्लस है नीचे ना ये. हाँ +2F होगा. डिवाइड बाय UVF. Same result. So whether it's concave mirror or convex mirror, mirror formula is the same. The only thing while solving numerical, convex mirror का focal length पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव लेना होगा.
एंड मैग्निफिकेशन वही HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V/U। याद करने का तरीका है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले में एक चीज नेगेटिव आती है, लेंस में उल्टा हो जाएगा, वो प्लस V/U हो जाएगा और 1/V माइनस 1/U होगा, वन ऑफ देम वुड बी नेगेटिव। क्वेश्चन कर दें एक, लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 centimeter, an object of height 4 centimeter is placed in front of in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of radius of curvature, radius of curvature 100 centimeter at a distance, at a distance 40 centimeter. Find the position, find the position, nature and height of image. Find position, nature and height of image. कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस कर्वेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जो गिवन है उसको एक बार लिखो सब कुछ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जो मैं फाइंड करना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा, वो अपने आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो जो भी गिवन है उसको लिखो पहले। एंड रिमेंबर दैट रे ऑप्टिक्स में हम सारे न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में ही करेंगे। हाँ, यू वुड बी नेगेटिव until is been given in a special condition, might be positive also. R is 2f. So height of image will be negative over here, right? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी पॉजिटिव, अपवर्ड हुआ ना, अपवर्ड पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव आता है, वो अपने आप आ जाएगा। Okay. सो इज ए कॉन्वेक्स मिरर, हमें दे रखा है 2R विच इज हाउ मच, 100, टू सॉरी 2f दे रखा है ना, R इज 2f, तो f आ जाएगा। यू कितना दिया हुआ है, यू Minus वुड 40. -40, अप्लाई द फॉर्मूला। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। So answer is 200/9. हाँ, so using 1/f is equal to 1/v plus 1/u. जो फाइंड करना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, वो अपने आप अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू टेक रेसिप्रोकल। वी पॉजिटिव आ रहा है, वी पॉजिटिव का मतलब है इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। शुड Real image होगी? नहीं नहीं, इट कांट बी कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा देखो एम क्या आ रहा है तुम्हारा, मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन के साइन से तुम्हें पता लग जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, एम पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल, एनलार्ज Okay, हो नहीं virtual सकता, indirect कॉन्वेक्स होगा, है। हाँ। I got it. नेगेटिव है तो रियल इमेज। अगर एम का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 है, एनलार्ज। एम का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड। और एम अगर 1 के इक्वल है, सेम साइज।
ये याद कर लो. If M is positive, it would be always virtual image. V positive का मतलब it is behind the mirror. Magnification का formula minus V by U. V is 200 by 9. U कितना है? -40. तो M आ रहा है +5/9. मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब वर्चुअल, और लेस देन का मतलब स्मॉल इन साइज. M इज पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है. M का जो मैग्नीट्यूड है वो <1 आ रहा है, मतलब इट इज डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज. अब मैग्निफिकेशन आने के बाद M इज ऑल्सो HI/HO. HO कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4. 20/9 सेंटीमीटर. 2 पॉइंट समथिंग है ना. सो इट्स डिमिनिश्ड. M पॉजिटिव मतलब वर्चुअल स्मॉल, एंड यू कैन ऑल्सो से इरेक्ट. वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है, अपराइट. वर्चुअल इमेज ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 centimeter. An object of height 6 centimeter is placed in front of is placed in front of a concave mirror of focal length 100 centimeter. कॉनकेव है तो मतलब F would be नेगेटिव negative. होगा. कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, नेगेटिव फोकल लेंथ होगा. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, पॉजिटिव होगा. फाइंड नेचर पोजीशन. फाइंड नेचर पोजीशन and height of image if object is placed at a distance. First part 200 centimeter, second part 100 centimeter, third part 75 centimeter, fourth part 50 centimeter. 1 मिनट. 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया ना मैंने, चेंज कर रहा हूं मैं. पहला पार्ट 300 है, सेकंड पार्ट इज 200, थर्ड पार्ट इज 150, 100, and fifth part is 50 centimeter. F नेगेटिव है, U विल बी रियल ऑब्जेक्ट का U नेगेटिव होता है. 1/1 करते जाओ. पहले वाले केस में U -300 ले लो. वैसे क्वेश्चन की वैल्यूज को देख के पता लग रहा है क्या आंसर आएगा. पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड C रखा हुआ है ना. इसका C होगा -200 पे, ऑब्जेक्टेड बियॉन्ड C. फर्स्ट का आंसर 150 है. इमेज बनेगी फोकस और C के बीच में. फोकस है 100, C है 200, तो 200 100 के बीच में आएगा.
वी आ रहा है -150, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वी नेगेटिव का मतलब है मिरर के सामने इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन इज -v/u। वी आ रहा है -150, यू दिया हुआ है -300। मैग्निफिकेशन है -1/2। नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। रियल का मतलब इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। हाफ हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 150 का मतलब क्या हुआ? बिटवीन सी एंड एफ। बिकॉज सी कहाँ पर है? सी -200 पर है, एफ कितना पे? -100 पे। तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। और हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO -1/2। HI निकालना है। HO कितना था? 6। तो HI आ रहा है -3। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, डाउनवर्ड बन रही है इमेज, बिकॉज डाउनवर्ड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसके रिमेनिंग पार्ट घर पे करना, और आई वुड सजेस्ट कि हर पार्ट का डायग्राम बना लो, बड़े अच्छा रहेगा। विल गिव यू कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इन ईच केस ड्रॉ अ रे डायग्राम मार्किंग द डिस्टेंसेस। ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यस। थोड़ा डाउट है नंबर चैप्टर। हम्म। मैं आपको सर फोटो भेज देता हूँ। क्या? टोरॉइड का डाउट था मेरा एक। हाँ बोलो। आपको सर लाइक मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है टेक्स्ट बुक में से। टोरॉइड में? हाँ जी, आपको मैंने फोटो भेज दिया है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा, है ना? ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.